قدیم مصر میں فرعون نے اپنے محل سے عظیم دریائے نیل کا نظارہ کیا اور خود کو ایک خواب کے اثر سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ فکر مند، سوچوں میں غرق، نروس۔ اس فکر کی وجہ اس کے جادوگر کی دی ہوئی تعبیر تھی، جس کے مطابق اس دن بنی اسرائیلیوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ کون، کیسے، کس میں ہمت ہے کہ اس کی طاقت کو چیلنج کرے جس سے دشمن کانپتے ہیں؟ فرعون اپنے سپاہیوں کی طرف مڑا اور ایک حکم دیا جو تاریخ کے صفحات پر نقش ہے۔ ہر دروازہ بجاؤ، ہر گھر کی تلاشی لو، ان کی شناخت کرو جن کے ہاں اس رات لڑکا پیدا ہوا ہو، ان بچوں کو اسی وقت مار دو۔ میرا حکم آخری ہے۔ فرعون، جس نے اتنے خونی حکم جاری کیے، شاید تاریخ کا سب سے ظالم حکمران تھا۔ مصر کا یہ ظالم حکمران بڑائی کے نشے میں غرق تھا، یہاں تک کہ وہ خود کو خدا کہتا تھا۔ اس ویڈیو کے لیے ہم نے بھرپور ریسرچ کی ہے اور اسکرپٹ رائٹنگ، وائس اوور اور ویڈیو ایڈیٹنگ انجام دی ہے۔ ہم اشتہارات سے پاک ایک فلاحی چینل ہے۔ ہمارے رضاکاروں کی پرخلوص ٹیم حق کی تبلیغ کے لیے کوشاں ہے۔ اگر آپ حق کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے اجتماعی عمل کا حصہ بن جائیں۔ فرعون کا قدیم مصری لقب اس عقیدے کی نمائندگی کرتا ہے، ایسا شخص جو زمین کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اچھا، پھر فرعون نے خود کو خدا کیسے سمجھ لیا؟ فرعون نے دعویٰ کیا، اے دربار والو، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں۔ سورہ القصص آیت 38۔ قرآن میں فرعون کا 74 مقامات پر ذکر ہے اور زیادہ تر اس کے ظلم اور تکبر کو بیان کیا گیا ہے۔ اپنے وفادار اور جانثار درباریوں کے ساتھ فرعون نے پورے ملک پر غلبہ پا لیا تھا۔ مصر کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی حکومت بھی دن بدن مضبوط ہوتی گئی۔ اس نے کسی اپوزیشن کے بغیر اپنی طاقت کا بے جا استعمال کیا۔ اس نے اپنے من مانے فیصلے کیے جس سے اس کا غرور اور زیادہ بڑھ گیا۔ قدیم مصر کے رسم و رواج کے مطابق فرعون کو خدا مان لیا گیا اور ملک کے تمام مندروں میں اس کے نام کی عبادتیں کی جانے لگیں۔ یوں اس کی گمراہی میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ لوگوں کو تکلیفیں دے کر آنے والے وقت سے بے خبر خوش باش زندگی گزارتا رہا۔ جلد ہی اللہ اپنا فیصلہ ظاہر کرے گا جس میں تمام انسانوں کے لیے ایک سبق ہے، لیکن اس فیصلے پر بات کرنے سے پہلے آئیے قدیم مصر کو قریب سے جانتے ہیں۔ دریائے نیل، جو دنیا کے سب سے بڑے دریاؤں میں سے ہے، مسلسل بہتا، یہاں تک کہ گرمیوں میں بھی خشک نہ ہوتا تھا، اور یہ زرخیزی اور خوراک کے بڑے ذریعے کے طور پر مشہور تھا۔ دریائے نیل کے پانی نے زرخیز ڈیلٹا بنا کر بنجر زمینوں کو آباد کیا، جہاں خوب فصلیں پیدا ہوئیں اور مصر کی تعمیر اور ترقی کا ذریعہ بنی۔ شہر اور بندرگاہوں کو ترقی ملی، جس سے تجارت خوب چمکی اور ملک کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ جب فرعون اپنے محل میں ہوتا تو اس وقت رعایا، خصوصاً اس کے غلام بنائے ہوئے لوگ، اس کے حکم پر دن رات کام میں مصروف ہوتے۔ ان غلاموں سے شدید محنت کے کام لیے جاتے تھے، جن میں اس وقت سب سے زیادہ رائج کاشتکاری اور تعمیراتی کے کام تھے۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام طویل عرصے تک مصر کے وزیر رہے اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد مصر دوبارہ اپنے پرانے شرکی عقیدے پر آ گیا۔ انتقام کی آگ میں جلتے مصریوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی آل اولاد اور ان کے بنی اسرائیلی بھائیوں کو غلام بنا لیا۔ ایک طرف ان غلام لوگوں کی تکلیفیں تھیں تو دوسری طرف فرعون کے آگے پیچھے ایڈوائزرز تھے، وہ لوگ جو اس کی حکمرانی میں اس کے مددگار تھے۔ ان میں سے ایک قارون بھی تھا، جس کی بے تحاشا دولت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھیں۔ ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ القصص آیت 76۔ قرآن ہمیں قارون کی وسیع خزانوں کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے اس کے تکبر اور آخرکار دولت سمیت اس کی ہلاکت کو بھی بیان کرتا ہے۔ فرعون کا ایک اور با اثر ایڈوائزر
हामान था, जो एक ताकतवर और बाइख्तियार फर्द था, जो वजीर के तौर पर कानों की निगरानी करता था। लेकिन कारून की तरह वो भी अपनी नफसानियत के बायस गुमराह हो चुका था। आइए फिरौन के ख्वाब और आने वाले इनकलाब के बारे में आपको बताते हैं। फिरौन ने ख्वाब देखा कि बनी इसराइलियों में उस रात पैदा होने वाला बच्चा बादशाह बनकर उसकी हुकूमत का खात्मा कर देगा। ख्वाब की ताबीर पाकर फिरौन ने उस रात पैदा होने वाले तमाम बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया। उसी रात पैदा होने वाले बच्चों में से एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। फिरौन के सिपाही हर घर में जाकर पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल करते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने यह खौफनाक खबर सुनी। अपने बेटे को बेरहम कातलों से बचाने के लिए आखिर उनके बस में था भी क्या। उन्होंने एक काम किया जो वो कर सकती थी। उन्होंने मायूसी के आलम में अपने रब को पुकारा। वो जानती थी कि सिर्फ अल्लाह ही उनके बच्चे को बचा सकता है। उनके दिल से निकली हुई दुआ अर्श तक पहुंची। उस नाजुक वक्त में अल्लाह ने उन्हें इल्हाम किया कि तुम इसे मूसा को दूध पिलाओ, फिर जब तुम्हें इसके बारे में कोई खतरा हो तो उसे दरिया में डाल देना, और डरना नहीं और ना सदमा करना। यकीन रखो हम उसे वापस तुम्हारे पास पहुंचा कर रहेंगे। सूरा अल-कसस आयत 7। अपने दिल में ये इल्हाम पाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को इत्मीनान महसूस हुआ। उन्होंने अपने बेटे को दूध पिलाया और गले से लगाया, मगर ये इत्मीनान कुछ देर के लिए था, क्योंकि सिपाही उनके घर पहुंच रहे थे। खौफ ने उन्हें फिर घेर लिया। कोई और रास्ता ना पाकर वो अपने बेटे को दरियाए नील पर ले गई। सिपाहियों की कदमों की चाप करीब आ रही थी और वो बेबस थे। ये एक दिल दहला देने वाला फैसला था। या तो अपने बच्चे को दरिया के रहमो करम पर छोड़ दो, या अपनी आंखों के सामने उसे सिपाहियों की तलवार से ज़िबा होता देखो। सिपाहियों के करीब आने से पहले उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और अपने बच्चे को झूले में लेटाकर दरिया में डाल दिया। वो सिपाहियों का रास्ता रोकने और अपने बच्चे की हिफाजत के लिए वहां खड़ी रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने अपने छोटे भाई का ध्यान रखने के लिए चुपके से बहते हुए झूले का पीछा किया। झूला आखिरकार फिरौन के महल तक पहुंच गया। फिरौन की बीवी आसिया ने दरिया के किनारे चहलकदमी करते हुए पानी में झूला देखा। जब उन्होंने उसमें झांका तो एक मासूम और सोए बच्चे को देखकर हैरान रह गई। उसे देखकर उनका दिल पिघल गया। वो फौरन फिरौन के पास गई और बच्चे के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया और ये जमानत ली कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। झूले से निकालकर बच्चे को देखते हुए फिरौन की बीवी ने उससे कहा, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। उम्मीद है कि ये हमारे काम आएगा या हम इसे बेटा बना लें। और ये फैसला करते वक्त उन्हें अंजाम का पता नहीं था। सूरा अल-कसस आयत 9। फिरौन के राजी होने पर मूसा अलैहिस्सलाम महल में रहने लगे। उन सब बातों से ला इल्म मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मुख्तलिफ जज्बात से गुजर रही थी। उन्हें ये जानकर इत्मीनान हुआ कि तमाम बच्चों के कत्ल के फिरौनी हुक्म के बावजूद अल्लाह की कुदरत उनके बच्चे को फिरौन के महल में ले गई है। तहम उनकी फिक्रमंदी बरकरार रही। फिर एक दिन उन्हें खबर मिली कि महल वाले एक बच्चे के लिए दूध पिलाने वाली ढूंढ रहे थे, जो दूसरी बहुत सी औरतों का दूध नहीं पी रहा था। इस उम्मीद के साथ कि वो बच्चा शायद उन्हीं का हो, वो महल में गईं और खुद को दूध पिलाने के लिए पेश किया। हैरत अंगेज तौर पर बच्चे ने उनका दूध कबूल किया, जिससे फिरौन की बीवी को बड़ा ताज्जुब हुआ। जाहिर है उन्हें नहीं मालूम था कि ये मूसा की असल माँ है। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम महल में अपनी वालिदा की निगहदाश्त में पलने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उम्र के साथ साथ सच्चाई और दयानतदारी की मिसाल कायम की, जिसने उनके इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर मुस्बत असर डाला। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें मगरूर और खुदाई का दावा करने वाले हुक्मरान फिरऔन का सामना करने और उसे जमीन और आसमान के रब को पहचानने की दावत देने के लिए नबूवत की जिम्मेदारी सौंपी। ये मिशन खतरे से भरपूर था, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम की जान भी जा सकती थी। लेकिन
अल्लाह के हुक्म को मानना उनके लिए हर चीज से अहम था। अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर हजरत मूसा फिरौन के पास गए, जिसने मौजिज़ों का मुतालबा किया। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम के सामने पेश करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को निशानियां और मौजिज़े दिए, मगर उन्होंने इन निशानियों का इनकार किया। ऐसे शर पसंदों को आखिरकार सख्त नताइज भुगतने थे। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी लाठी फेंकने का हुक्म दिया, जो एक अज़दहा बन गया। इसे जादू समझकर फिरौन ने अपने जादूगरों को पुकारा और कहा, मूसा के जादू को खाक में मिला दो। जादूगरों ने अपनी महारत दिखाई और रस्सियां और शाखें जमीन पर रेंगते हुए सांप लगने लगे। लेकिन हजरत मूसा की लाठी ने उन सबको निगल लिया और उनके वहमो गुमान को खत्म कर दिया। जादूगर समझ गए कि मूसा अलैहिस्सलाम का अमल जादू नहीं था और कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है और वो उन पर ईमान ले आए। अपनी आंखों से सच्चाई देखने के बावजूद फिरौन ईमान ना लाया। उसने मूसा अलैहिस्सलाम पर जादूगरों का ईमान तस्लीम नहीं किया और उन्हें कत्ल कर दिया। चुनाचे अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम को अपने पैगंबरों की बात ना मानने के जुर्म में कई सालों तक कहत और बीमारी में जकड़ लिया। वो तबाहकुन सैलाबों, टिड्डियों के हमलों, हशरात की मुसीबतों और मेंढकों की वबाहों में मुब्तला हुए। उन्होंने इन अजाबों से भी कुछ नहीं सीखा और अपने तौर तरीके ना बदले। अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को मिस्र से बाहर ले जाए। ये जिंदगी और मौत के दरमियान एक खतरनाक सफर था। हजरत मूसा और बनी इसराइलों के निकलने की खबर सुनकर फिरौन उनको खत्म करने के लिए अपनी हैबतनाक फौज हरकत में लाया। मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइलों से उसका सामना रेड सी के किनारे पर हुआ, जहां वो खौफनाक सूरत हाल में फंस गए थे। उनके पीछे फिरौन की बहुत बड़ी और ताकतवर फौज थी और आगे रेड सी का फैला हुआ समंदर था। उस नाजुक मौके पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ का जवाब दिया। दूसरे सारे रास्ते बंद हो जाने के बाद उनकी खलूसे दिल से की गई दुआ कबूल हुई। सब बेबसों के मददगार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी लाठी समंदर पर मारने का हुक्म दिया। पानी पर लाठी पड़ते ही मौजज़ा हुआ और रेड सी के दो हिस्से होकर दरमियान से गुजरने के लिए रास्ता बन गया। इस आसमानी मदद को देखकर बनी इसराइली हजरत मूसा के पीछे चलकर इस खुश्क रास्ते से समंदर को पार करने लगे, जो मौजज़ाती तौर पर समंदर में बन गया था। फिरौन अपने गरूर में अंधा हो चुका था। उसने ये हैरत अंगेज मंजर देखा और जिद में आकर अपनी फौज को बनी इसराइलियों का पीछा करने का हुक्म दिया। जब फिरौन और उसकी फौज समंदर के बीच में पहुंचे तो अल्लाह ने अपना हुक्म जारी किया और खौफनाक समंदर ने काफिर फौज को अपनी लपेट में ले लिया। समंदर ने फिरौन और उसकी फौज को गर्क कर दिया और हमने बनु इसराइल को समंदर पार करा दिया। तो फिरौन और उसके लश्कर ने भी जुल्म और ज्यादती की नीयत से उनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब डूबने का अंजाम उसके सर पर आ पहुंचा तो कहने लगा, मैं मान गया कि जिस खुदा पर बनु इसराइल ईमान लाए हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं भी फर्मा बरदारों में शामिल होता हूं। लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया, अब ईमान लाता है, हालांकि उससे पहले नाफरमानी करता रहा और मुसलसल फसाद ही मचाता रहा। लिहाजा आज हम तेरे सिर्फ जिस्म को बचाएंगे ताकि तू अपने बाद के लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए, क्योंकि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल बने हुए हैं। सूरह यूनुस आयत 90-92। पहाड़ जैसी मौजें फिरौन और उसकी फौज को निगल गईं। इस तरह अल्लाह ने मोमिनों को काफिरों के शर से महफूज रखा। फिरौन के डूबने के बाद उसकी लाश मिल गई और उसे ममी बनाकर महफूज कर लिया गया। ताहम महल के रिकॉर्ड्स में उसकी मौत को कुदरती लिखा गया। मिस्री
अपनी शिकस्तों को छुपाने के लिए मशहूर थे, लिहाजा उन्होंने इतनी बड़ी शिकस्त को दर्ज नहीं किया। दिलचस्प बात यह कि कुरान ने ये वाकया उस वक्त बयान किया जब लाशों की ममी और फिरौनों के मकबरों की दरियाफ्त का किसी को इल्म नहीं था। ये तो बाद की 18वीं और 19वीं सदी में ये मकबरे जमीन से निकाले गए और फिरौनों की ममी शुदा लाशें अब म्यूजियम में मौजूद हैं। ये किस्सा एक याद दहानी है कि हर शख्स को अपना रास्ता चुनने और जीने की आजादी है, फिर आखिरकार उसे दुनिया से चले जाना है। फिरौन ने कायनात के खालिक अल्लाह का इनकार किया और खुद खुदाई का दावा किया। उस फैसले का अंजाम बहुत भयानक हुआ। कहा जाता है इंसान का नफ्स फिरौन की तरह और दिल मूसा की तरह है। हर शख्स के अंदर हजरत मूसा और फिरौन जैसी जंग जारी रहती है। हमारा नफ्स बड़ाई और खुद पसंदी चाहता है, चूंकि फिरौन की खुसूसियात थी, है ना? तो आइए अपने दिलों को कुरान की रोशनी से मुनव्वर करें और उन्हें हर वक्त पाक साफ रखें, ताकि आखिरकार हम अपनी उस अंदरूनी जंग में कामयाब ठहरे। आइए अल्लाह के सामने आजिज बंदे बने, कुफ्र करने वाले नहीं। फिरऔन का कुफ्र उसकी मौत तक जारी रहा। उसने नाफरमानी और अल्लाह के खिलाफ बगावत की जिंदगी गुजारी और आखिर में उसका ईमान कबूल नहीं हुआ। सब कुछ जाहिर हो जाने के बाद मैं ईमान लाता हूं कहने का क्या फायदा? अगर हम ये वीडियो देख रहे हैं तो अब भी हमारे पास तौबा का, अपनी जिंदगियां बदलने का और अल्लाह से माफी चाहने का वक्त है। हमारे गुनाह फिरौन जैसे बड़े नहीं हैं। याद रखें, फिरौन भी कभी एक मासूम बच्चा होगा, लेकिन उसके नातौबा करदा गुनाह बढ़ते गए और उसके दिल पर मोहर लग गई। अल्लाह करे हमारी मौत से पहले हमारी आंखें खुल जाएं। सूरह अल-अराफ आयत 103।